संगीता मैम, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू। ओके। संगीता मैम, जैसे कि मैं जानता हूँ जैसे कि आपने 2 बुक्स लिखी हैं। आप इमोशनल वेलनेस के लिए लोगों को काउंसल करते हैं। क्या एग्ज़ैक्टली आपकी लाइफ़ में कैसा चेंज आया कि आपने एक आईटी कंपनी से हट कर कुछ ये इमोशनल वेलनेस, स्पिरिचुअलिटी और लाइफ़ कोच वाली उसमें आपने काम किया? हाँ, एक्चुअली मैंने अपनी लाइफ जर्नी स्टार्ट करी थी करियर की एट द एज ऑफ 20 and with IT, as you know. So after 3 decades, around about 3 decades working in IT, one day I was sitting in my office and I was just thinking, "Hey, am I truly happy? And what is the next step? What should be my next step?" And I was getting no answer. So, and then I felt something is missing within me. I was probably disconnected from myself. So, and then my questions were, who am I? What is the purpose of my life? Why I am here on this earth? What is the meaning of this life? So when these questions came to me, and then I realized that first and the foremost thing for me is to go deep within me and find myself first. Okay. So that day I decided that maybe probably I don't want to work in IT more. I want to explore myself. That is the priority, that why I have come on this earth. I should know at least that clearly. कैसे ये क्वेश्चन कैसे अकर हुआ ये कि ये मैं क्या कर रही हूँ या मैं अर्थ पे क्यों हूँ? ये तो लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं कि उनको ये क्वेश्चंस का मतलब क्वेश्चन ही नहीं उनके अंदर से कभी आता। तो कभी क्या आपने कुछ अपने आसपास कुछ देखा आपने कि मेरे को या कुछ सुना किसी को जिससे आप इंस्पायर हुए? नहीं, ऐसा क्या हुआ एक दिन, जैसे मैंने आपको बताया, was sitting in my office and I asked myself these questions. I was running my IT company. There was one girl, Sarla. She was going through a lot of emotional turbulence in her life. And when I was counseling her, at that time, some questions I felt that some answers were missing to me also. So that was the realization that now I have to explore for these answers. So what I am guiding her, I probably don't know exactly. So अब ये कुछ डिफरेंस एक हम देख लेते हैं कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में कि हाँ, स्पिरिचुअलिटी में एज़ यू सेड कि बहुत सारे क्वेश्चंस अकर होते हैं। मेरे दिमाग में भी जब उसको समझाते-समझाते मेरे दिमाग में आया कि कुछ क्वेश्चंस तो मेरे भी मिसिंग हैं, तो मुझे भी उनके आंसर चाहिए। right. तो स्पिरिचुअलिटी व्हाट आई बिलीव इज़ इट्स ऑल अबाउट दैट क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में आ रहे हैं एंड फाइंडिंग इट्स आंसर। एंड रिलीजन को आप स्पिरिचुअलिटी से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? आपको क्या लगता है कि व्हाट इज़ रिलीजन एंड व्हाट इज़ सपोज आपको कहीं जाना है, ठीक है, कहीं ऐसी जगह पे जाना है जहां आप पहले कभी नहीं गए हो, एंड यू गेट अ गाइड, ठीक है, एक आपको कहीं से वो रिटर्न कुछ मैनुअल टाइप मिल जाता है कि ऐसे ऐसे जाना है, और आप वो उठा लेते हो, and then you start moving towards that direction. And that guide, that manual may be 1,000 years back, maybe 500 years back, maybe any amount of time, you don't know that, but that is a guide for you. So you start your journey with that, and then according to that point, where whatever is written in that manual, you find that place. Okay. So this is how I relate to religion. So religion is the experience of our ancestors. They have explored, they have sought something, and they have discovered something, and they have written all those things in some books or some from where we get, or maybe our parents, grandparents, they are following some beliefs, some all these books, so that were given to us as a manual. Okay, but now that manual is how much old we don't know. Whether whatever is written in that manual is relevant in today's life or not, we don't know, because that might be written thousands of years back. At that time, that was a fact. That was the truth. That was the requirements. So those beliefs, so that we should follow these things that were written there. But now, is it okay to follow as it is, or we have to explore it further? Okay, so one choice is what we do is whatever our parents are telling, grandparents told our parents, parents are telling us, and we just
blindly follow them. And obviously, initially, religion helps us because दैट इज संस्कार देता है वो हमें। अच्छा क्या है बुरा क्या है वो तो बताता है। डेफिनेटली दैट गाइड इज देयर। बिगिनिंग इनिशियल जो हमें एक बच्चा जब पैदा होता है उसको नहीं पता अच्छा क्या है बुरा क्या है। बिगिनिंग में उसको वो सारी जो इंफॉर्मेशन है दुनिया में जीना कैसे है, दुनिया में मुझे आगे चलना कैसे है, इसको मारना बुरा है, इसको ये चीज अच्छी है, वो उसको संस्कार मिलते हैं घर से। और वो हमारे रिलीजन और वही चीजें हमें धर्म ही हमारा गाइड कर रहा होता है। ठीक है, ओके। तो इनिशियली दैट इज वेरी गुड, दैट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, कि आपको एक थोड़ा सा मैनुअल तो चाहिए, सपोर्ट एबीसी मिल गए। एबीसी आपको चाहिए, बट आपको वहां पे रुक नहीं जाना है। ठीक है, टेक द गाइडेंस फ्रॉम योर रिलीजन और वट एवर religion you are following or beliefs you are following, then explore it further। ठीक है, उसमें आगे जाके वहीं रुक मत जाओ कि एक जैसे सपोज आप चैल गए हो, चैल में किसी ने एक होटल या रेस्टोरेंट एक्सप्लोर किया, आपको बता दिया कि वो बहुत अच्छा वहां जाना, और उसके आगे उसने नहीं बताया, आप वहीं जाके वहीं रुक के और वापस आ गए। अगर आप एक्सप्लोर करते तो क्या पता आपको क्या क्या और चीजें मिल जाती। ठीक है, तो इट्स बेटर कि आप वहां से तो ठीक है बेस लो, बट एक्सप्लोर इट फर्दर। फर्दर में भी आपने क्या एक्सप्लोर करना है, दैट इज जर्नी अबाउट योर सेल्फ, दैट हु यू आर एज ए पर्सन। हमारे जो मेन क्वेश्चन जो मेरे मन में आए थे वो एक स्पिरिचुअल सीकिंग ही है कि हु एम आई, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, व्हाई आई एम हियर, सीक व्हाट आवर एंसेस्टर्स थॉट। जो हमारे जो पूर्वज इन्होंने रिलीजन जो चीजें बिलीव्स बनाई, उन्होंने भी तो कुछ ढूंढा था ना, तभी वो बनाई। ठीक है, तो वहीं से तो रिलीजन बना। जैसे अब महात्मा बुद्ध ने भी जो था उनको जो कुछ मिला उसके बाद उन्होंने वहां से जर्नी अपनी फिर शुरू करी। ठीक है, उन्होंने फिर आगे ढूंढा, आगे फर्दर रियलिटी क्या है, ट्रुथ क्या है, तभी वो इतना आगे तक जा पाए। अगर वो वहीं रुक जाते तो रुक यहाँ जाते। पे मैं आपको दो जगह पे एक चीज पूछूंगा, जैसे कि आपने कहा कि हमारे पूर्वजों ने कुछ चीजें डिस्कवर की और वो हमें आगे कैरी फॉरवर्ड की। मैं एक बड़ी अच्छी एक चीज याद कर रहा था कि पुराने टाइम पे ना लोग स्लेट पर लिखते थे और वो बाद में स्लेट मिटा देते थे। धीरे धीरे आपके नोट पैड नोट बुक्स आई, लोगों ने नोटबुक्स के ऊपर लिखना शुरू किया, वी स्टार्टेड मेकिंग नोट्स ऑफ इट। नॉलेज का एक हमारे पास इंफॉर्मेशन इकट्ठा होना शुरू हुआ। होते होते अब कहते हैं कि अगर आपने किस एज में आपने बुक लिखी, 40 में, 50 में? हाँ, 2020 में। ओके। मैं उस दिन सुन रहा था कि जब कोई अपना एक 40 कोई अपनी बुक लिखता है तो वो अपना सिर्फ बुक नहीं लिखता, वो अपने 40 साल का एक्सपीरियंस लिखता है। वेरी ट्रू। तो जो वो बुक पढ़ता है, तो अगर उसको वो बुक समझ में आ जाती है एक बार, तो वो 40 साल समझदार इंसान की समझ ले लेता है। राइट, आपका एक्सपीरियंस अगर उसने लिया, मतलब कि आपने 40 इयर्स का एक्सपीरियंस किया, लेकिन उसने सिर्फ 4 दिन में वो बुक पढ़कर वो 40 इयर्स के एक्सपीरियंस में से काफी कुछ ले लिया। गेन कर लिया। राइट, तो हम उसको कहेंगे समझदार हो गया। वो बंदे ने एक और चीज ऐड की थी कि मैं इसको बुढ़ापा नहीं कहूँगा कि बूढ़ा हो गया, लेकिन वो समझदार हो गया, मैच्योर हो गया। राइट, तो मैं इस चीज को मैं इस पॉइंट पे ले रहा था कि जैसे कि हम उन्होंने भी बुक्स लिखी, हमारे काफी चीजें रिटन हमारे पास लिखी है। एकदम से दौर भी चेंज हुआ है, अभी आजकल इंटरनेट का टाइम है और हमें कुछ भी चाहिए तो गूगल देखते हैं, ऑलवेज देयर। राइट। तो उस टाइम हम आज के उस इंफॉर्मेशन को और जो हम स्पिरिचुअलिटी जिसको कहते हैं कि एक्सप्लोर करना लाइफ को, हमें उन्होंने हमें बता दिया यहाँ तक, लेकिन अब हमें उसके आगे जाना है कि नहीं, देन वी नीड टू डिसाइड। तो दैट इज की स्पिरिचुअलिटी की अब आपके पास अंधेरा है और अब आपको यू नीड टू फाइंड योर ओन वे, एंड रिलीजन इज की यू हैव दिस वे। नो नो, सी रिलीजन आपको एक गाइड तो दे रहा है, बिगिनिंग तो दे रहा है ना। बिगिनिंग आपको एक घर से संस्कार मिल रहे हैं। आप जिस फैमिली में एक बच्चा पैदा होता है उसके पेरेंट्स जिस भी धर्म को मानते हैं, और हर धर्म एक डायरेक्शन देता है, एक मैनुअल की तरह होता है कि लाइफ को, जिंदगी को ऐसे जीना है। ठीक है, तो वो संस्कार तो उसको वहां से मिलते हैं। ठीक है, बट उस संस्कार को उतना लेके जहां तक उसने पढ़ा उस किताब में, जैसे आपने कहा कि किताब लिखी, एक एक्सपीरियंस लिख दिया पूरी जिंदगी का, और वहां से वो देख के उसको वाइज हो गया, बच्चा वाइज हो गया, वो सब जो विजडम उसके पेरेंट्स ने दी है। ठीक है, अब सेम वे अगर हम बुक की बात लें तो जितनी विजडम उसको बुक को पढ़ के 10 दिनों में पढ़ ली उसने, 40-50 साल का एक्सपीरियंस, जितनी विजडम उसको आई है वो जो जिसने लिखी थी
और जो उसकी विजडम है, क्या उसमें फर्क नहीं होगा? काफ़ी फ़र्क है, उसने अपनी नज़र से देखी होगी उस बुक हाँ, को और उस उसने अपने अपने अपनी नज़र से नज़रिए से देखी लिखा होगी, होगा। उसको वो एज़ इट इज़ अडैप्ट करेगा तो कि हो सकता है कुछ पॉइंट उसको ना भी पसंद आए, हो सकता है उसको कुछ डिफरेंस लगे, बट उसको ब्लाइंडली फॉलो करे या उसको एक्सप्लोर करे या उस ट्रुथ को फर्दर आगे फाइंड करे, ठीक है? दैट इज़ अ चॉइस। अब जब पैदा हुआ तो उसको एक संस्कार मिल गए घर में, वो एक गाइडेंस है। रिलीजन किसी भी तरह का वो एक हमें गाइडिंग लाइट तो है ही है वो, ठीक है? क्योंकि जो हमारे सिस्टर्स ने भी तो एक किस चीज को ढूंढ रहे हैं कि समथिंग बिगर इज देयर। जो हम इंसान यहाँ पैदा हुए हैं, हमसे कुछ बड़ा है इस दुनिया में जो सारी सृष्टि को चला रहा है, उसी के सर्च में उन्होंने फाइंड करा और रिलीजन बने और सब चला, ठीक है? लेकिन उनके एक्सपीरियंस भी उस समय बहुत वैलिड थे और वो आज भी हमें गाइड करते हैं एज ए रिलीजन। तो लेकिन आगे आप अपनी जर्नी को वहीं रोक देते हो या अपनी सोल को फाइंड करते हो, सीख करते हो कि अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, क्या मैं भी ढूंढ सकता हूँ? उन्होंने भी तो ढूंढा था ना, तो आप क्यों वहीं रुक रहे हो? आप भी ओके, उसको आगे फर्दर तो लेके जाओ, ठीक है? एक्सप्लोर करो अपने आप को। सो दैट इज स्पिरिचुअलिटी व्हेन यू आर सीकिंग योर ओन ट्रुथ। ओके। बोथ आर गुड, ठीक है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रिलीजन बिल्कुल नहीं मानना चाहिए और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलना चाहिए, वो भी रिलीजन की एक अपनी इम्पोर्टेंस है, स्पिरिचुअलिटी की एक अपनी इम्पोर्टेंस है। आपको दोनों बेसिक सिमिलर भी हैं इन द रिलीजन सेंस कि बोथ बोथ आर टेलिंग कि कुछ समथिंग इज बिगर देन यू विच यू नीड टू सीक, ठीक है? रिलीजन भी यही बोल रहा ये है तो और मैम स्पिरिचुअलिटी इसमें भी। कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि ये तो हमें बिल्कुल सामने से पता है कि हमारी बॉडी टेम्परेचर जो है वो 98 से 103 तक रेजिस्ट करती है, उसके बाद भी प्रॉब्लम करती है। तो ये तो वी कैन अंडरस्टैंड कि हमारे कान उतने नहीं सुन सकते जितना घोड़े के कान सुन हमारे नाक इतनी नहीं सुन सकती इतना डॉग के नाक सुन सकती, मतलब इट इज लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स जो वो लोग सेंस कर पा रहे हैं और हम नहीं कर पा रहे। दैट आई कम्प्लीटली एग्री विद कि हम सिर्फ बॉडी नहीं है, बॉडी के बाहर भी तो बहुत जैसे आप कुछ है। देखोगे शुरू शुरू में हम सब लोग पैदल यात्रा करते थे, फिर व्हील इन्वेंट हुआ, फिर आगे आगे फर्दर फर्दर अब एरोप्लेन सब। ये क्या है कि अगर वो वहीं रुक जाते तो क्या आगे इतनी ग्रोथ हो पाती कि हमें पता चलता कि अब इतने लोगों को लेके एक एरोप्लेन फ्लाई कर सकता है, ठीक है? तो ये है कि हम जब किसी चीज को सीख करते जा रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली एक्सप्लोर करते जा रहे हैं, फर्दर एंड फर्दर हर किसी का एक एफर्ट लग रहा है। तो सेम वे अगर आप रिलीजन को भी वैसे ही लेके चलो कि हमें गाइडेंस तो मिल गई, अब हमने आगे और क्या एक्सप्लोर करना, बिकॉज इट इज मच बियॉन्ड जो हम चीज आई से देख रहे ओके हैं और मैम, उसके बियॉन्ड है दुनिया बहुत। जैसे आपने कहा हुआ माय, आपको क्या अभी आपको क्या एग्जैक्टली लास्ट एट लास्ट क्या फील हुआ कि हु एम आई? बेसिकली जो मुझे लगा कि हु एम आई, ठीक है? I am originated from the super consciousness Shiva. Okay, and same way, the whole universe is created from that super consciousness, and the part of that consciousness is within me. Okay, and within every particle of this universe. So that is my identity, and but why I am here on this earth? I am here on this earth to explore, to experience certain emotions, certain things in my life so that this part of Shiva hai can grow further, because that super consciousness is also seeking expansion through all his creation. And as you are growing, that super consciousness is also growing. That's good.